सब कुछ हो गया है नया. Everything is made new. That is the gospel. ये सुसमाचार है. और आज वचन से हम इसको सीखेंगे. And we will learn this from the word today. Amen. But before you go into the word, वचन में जाने से पहले I just want you to become sensitive to what happens, what natural eyes don't see. मैं चाहता हूँ आप संवेदनशील हो जाएं. क्या होता है जो शारीरिक आंखों को नहीं दिखता है. Okay. I want to tell you that today there are thousands upon thousands of angelic beings in this place. मैं आपको बताना चाहता हूँ हजारों हजारों स्वर्गदूत इस जगह पर हैं. Okay. And Jesus said, henceforth you will see heavens open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. यीशु ने कहा अब से तुम स्वर्ग को खुला देखोगे और स्वर्गदूतों को आते जाते उतरते चढ़ते देखोगे मनुष्य के पुत्र पर. Angels of God ascending and descending upon the Son of Man. स्वर्गदूत मनुष्य के पुत्र पर उतरते और चढ़ते. That means Jesus is the open heavens. इसका मतलब यीशु ही वो खुला स्वर्ग है. And wherever he is, और जहां पर वो है, heaven is open. स्वर्ग खुला हुआ है. Angels of God ascending and descending upon the Son of Man. परमेश्वर के स्वर्गदूत उतरते और चढ़ते उस मनुष्य के पुत्र पर. Amen. आमेन. So इससे पहले हम वचन में जाएं, So before we go into the word, I want you to give your tender devotion to the Lord. मैं चाहता हूँ अपना वो प्रेम, Just close your eyes. अपनी स्नेह से भरी भक्ति परमेश्वर को दे. अपनी आंखों को बंद करें And just talk to him. उससे बात करें. Just tell him, Lord, would you speak to me today? उससे कहें प्रभु आप मुझसे आज बात करें. Would you reveal yourself to me in ways I have never known you before? अपने आप को मुझ पर प्रकट करे जैसा मैंने आज तक आपको नहीं जाना. There is so much I don't know. इतना कुछ मुझे नहीं पता. I take my awareness off from all the things that don't matter. मैं अपना ध्यान उन सारी बातों से हटाता हूँ जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता. And I put it on you. और मैं आप पर अपना ध्यान लगाता हूँ. You are worthy of my worship. आप मेरी आराधना के योग्य. You are worthy of my praise. आप मेरी स्तुति के योग्य हो. And as long as I live, और जब तक मैं जीऊंगा, I will never cease to worship you. मैं आपकी आराधना करना कभी ना I'll रोकूंगा. never cease to praise you. कभी आपकी स्तुति करना ना I'll never रोकूंगा. cease to thank you. कभी आपको धन्यवाद देना ना रोकूंगा. We worship you. मैं आपकी आराधना करता हूँ. Lamb of God, परमेश्वर के मेमने, Son of God, परमेश्वर के पुत्र, we worship you. हम आपकी आराधना करते हैं. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. आमेन. Amen. आमेन. There is only one worthy under this roof to receive all the glory and honor. केवल एक है जो योग्य है इस छत के नीचे सारा आदर और महिमा पाने के लिए. And his name is Jesus. और उसका नाम है यीशु. Amen. आमेन. And let me tell you, और मैं आपको बता दूं, and I mean it with all my heart, और अपने पूरे दिल से कहता हूं, every good thing that you see in this ministry, इस सेवकाई में जो कोई अच्छी चीज आपको दिखती है, it is Jesus. वो यीशु है. उसके कारण. And every bad thing that you see, और हर जो खराब चीज आपको दिखती है, it is me. वो मेरे कारण है. Yes, हाँ, because he is perfect. क्योंकि वो सिद्ध है. Amen. So we will go to the word today. आज हम वचन में जाएंगे. और ये मेरी इच्छा है And it is my prayer that through this ministry कि इस सेवकाई के द्वारा we can raise genuine, true, pure lovers of God. हम सच्चे ईमानदार प्रेमियों को उठा के खड़ा करें प्रभु के लिए. Amen. Not religious people, धार्मिक लोग नहीं, not knowledgeable people, ज्ञान से भरे लोग नहीं,
but lovers. लेकिन प्रेमी लोग, Lovers. प्रेमी लोग। Please be seated. Quickly take your place because we are going to learn something powerful today. कृपया जल्दी से स्थान ले लें, हम कुछ शक्तिशाली सीखने वाले हैं आज। How many people know कितने लोग जानते हैं that there is so much we don't know? कि इतना कुछ है जो हमें नहीं पता है? हाँ? कितने लोग ये जानते हैं कि मुझे बहुत कम पता है? How many people know that I know very little? The more we know, जितना the हमें more we know, how less we know. जितना ज्यादा हमें पता लगता है, उतना ज्यादा यह मालूम होता है कि कितना कम हमें पता है। ओके? इसीलिए बाइबल कहती है जो कहता है मुझे सब कुछ पता है उसे कुछ नहीं पता। That's why the Bible says, he who says I know everything knows nothing. जितना ज्यादा हम सुसमाचार को जानते हैं, समझते हैं, उतना ज्यादा हमें पता चलता है कि ये केवल उसकी दया है, उसकी करुणा है, उसकी भलाई है जो हमारे ऊपर उसने प्रकट करी है। The more we know the gospel, we realize it is only by His grace, His goodness, His kindness that He has shown towards us. वो किसी को भी चुन सकता था, He could have chosen anyone. किसी को भी बुला सकता था। He could have called anyone. उसने आपको और मुझे बुलाया, He called you and me, अपने लहू से हमें धोया, washed us with His blood, बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। gave us the right to be His sons and daughters. मगर एक चीज जो हमें करनी है But one thing we have और to वो do, ये है and that is कि इस अनुग्रह को हम व्यर्थ न जाने दें। that we do not let this grace go in vain. आप सोचो कैसा वो रिश्ता होगा अगर पति को पता है कि मेरी जो पत्नी है वो बहुत प्यार करने वाली है और दया से भरी हुई है और उसको पता है कि कुछ भी हो जाए मुझे छोड़ने वाली नहीं है, तो वो उस प्यार को डिस्पाइज करता है या तुच्छ मानता है और बार बार बाहर अगर वो वैश्याओं के पास जाए या और स्त्रियों से संबंध रखे। ये वैसा ही है जब हम ऐसे जीते हैं, क्योंकि मुझे पता है प्रभु मुझे माफ़ कर देगा, तो मैं कैसा भी जीवन जीऊँ। What if in a marriage a husband knows that his wife loves him unconditionally, will never leave him, and he despises her love and goes out to prostitutes okay. or makes relationship with other women? This is the same that many people do with Jesus, knowing that He will forgive me for my trespasses. Amen. हमारा एक उद्देश्य है इस जीवन में We have one objective in कि this, इससे पहले ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाए, that before this dust goes back to dust, हमारा जीवन उसको आदर और महिमा दे। let our lives glorify and honor our God. Amen. Amen. That we may become vessels of honor. कि हम आदर के पात्र बने। Amen. All right. I want you to engage in the word today. मैं चाहता हूँ वचन में आज शामिल होना। Okay. Amen. Let it not just be a sermon. सरमन ना हो केवल ये, Let it be your reality. ये आपकी हकीकत बन जाए। Amen. And you know one thing in this church? और इस कलीसिया में एक बात पता है आपको? This church is for the lovers of the word of God. ये कलीसिया परमेश्वर के वचन से प्रेम रखने वालों के लिए है। Amen. आमेन। यीशु ने कहा एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया, बारिश आई, तूफान आए, बाढ़ आई, मगर वो घर हिल नहीं सकता क्योंकि वो घर मेरे वचनों के ऊपर बना गया है। Jesus said a wise man built his house on the rock and storms came and floods came but the house was unshaken because it's built on his word. Amen. All right. So आज का जो वचन है बहुत इंपॉर्टेंट है और एक संडे तो नहीं हो सकता, तो शायद हमें सीरीज करनी पड़ेगी। Today's word is very important and it Okay. cannot be done in one Sunday. We may have to go into a Okay. series. And what I want to teach you is a new creation in Christ Jesus. मैं आपको सिखाना चाहता हूँ नई सृष्टि मसीह यीशु में क्या है। और मैं आपको बता रहा हूँ मेजॉरिटी जो कलीसिया है, ज्यादातर जो कलीसिया है, उनको कोई आइडिया नहीं है कि इसका मतलब भी क्या है। And I'm telling you, majority of the church doesn't have any idea what this even means. हम उन आयतों को बोलते हैं, We speak those हम words गाना aloud. गाते हैं, We sing those मगर कई songs. बार उस भेद को नहीं समझते। But many times we don't understand that mystery. मगर बाइबल कहती है God has ordained through the foolishness of preaching that men must be saved. But the Bible says परमेश्वर ने प्रचार की मूर्खता के द्वारा ये निर्धारित किया है कि मनुष्य बचाया जाएगा, उद्धार पाएगा। Amen. God has ordained it. परमेश्वर ने ऐसा ठहराया है। Okay.
So even though the preaching might sound foolish, तो हालांकि प्रचार मूर्खता भरा लग सकता है, but it is ordained by God लेकिन वो परमेश्वर द्वारा to ठहराया change गया you from glory to glory to glory. कि आपको महिमा से महिमा में बदलता चला जाए. Amen. आमेन. And all I want today is और आज मैं इतना ही चाहता हूँ your awareness, कि आपका ध्यान यहाँ, your attention. आपका ध्यान इस तरफ हो. Okay? Okay. Be like a flint. ये देखा आपने घोड़े जब दौड़ते हैं तो यहाँ पे उनके क्या लगा देते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? हाँ, ब्लिंकर्स लगा देते हैं. हाँ, तो जो रेस में तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं, ब्लिंकर्स लगा दो आज. So like horses running a race, block everything else on the side that distracting you. Okay? क्योंकि पौलुस कहता है मैं उस व्यक्ति की तरह नहीं जो हवा में मुक्के मारता हूँ, मैं एक लक्ष्य की तरफ दौड़ रहा हूँ. हम जो मसीह में हैं, हम एक लक्ष्य की तरफ दौड़ रहे हैं. Paul says, I'm not like a man punching in the air. We are running towards a certain aim. We have a certain objective aim. Sorry. Amen? हम बाकियों की तरह नहीं जी सकते. We cannot live like the others. ना जी सकते हैं, We can, जी सकते हैं, we can, मगर फिर उस लक्ष्य को खो देंगे. but then we'll miss out on that aim. मगर हम एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं. But we are moving towards a goal. ओके? सो आज का वचन मैं बहुत सिंपल करके आपको बताऊंगा, मगर ये सिंपल नहीं है. और केवल आत्मा अगर इसको प्रकट ना करे तो आप नहीं समझ पाओगे. So I'll share today's word very simply with you, but if the Spirit does not reveal, it cannot be understood. सो जब वचन का प्रचार होता है, आपका ये प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु मुझ पर अपने इस भेद को प्रकट कर, क्योंकि जब तक तू प्रकट ना करे मनुष्य उसे नहीं समझ सकता. Because when the word is being preached, you must receive this with this prayer, Lord, reveal your word to me today, because if the Spirit does not reveal it, you cannot receive it. ओके? तैयार हैं आप वचन में जाने के लिए? Are you ready to go into the word? एक बार अपनी आंखें बंद करें, Close your eyes. अपना दायां हाथ अपने दिल पे रखें Put your right hand और on your heart. परमेश्वर से एक सच्चे मन से प्रार्थना करें. बोले प्रभु मेरी समझ को खोल दे And pray to God, Lord, open my कि मैं तेरे understanding, वचन के भेदों को जान सकूं. that I may know the mysteries of your word. Speak to me, Jesus. मुझसे बात करें यीशु. We trust your mighty Holy हम Spirit. आपकी महान पवित्र आत्मा पे भरोसा करते हैं In प्रभु. Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. आमेन. All right. So let's go to John chapter 17. यूहन्ना 17 पे चलते हैं. Okay? और अगर मैं आज किसी एक व्यक्ति को उठाऊं और मैं बोलूं आप कहां से हो, If I make someone stand and ask where you from, तो वो बोलेंगे मैं बरेली से हूं, they'll say I'm from Bareilly या मैं बेंगलोर से हूं, or Bangalore या मैं यहाँ से हूं, मैं or वहां from से this हूं. place or that place, हाँ, और वो सही बात है, and they are telling the truth. मगर एक और असलियत है जिसको हम मिस करते हैं. But there is another reality which we miss out on. Okay, let's see this. John 17 verses 16. यूहन्ना 17 उसका 16. They are not of the world, just as I am not of the world. जैसे मैं संसार का नहीं हूं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं हैं. ओ एक मिनट, यीशु मसीह बरेली से है या बेंगलोर से है? Is Jesus from Bareilly or Bangalore? कहां से? हाँ, स्वर्ग से. He's from heaven. पक्की बात. Are you sure? तो वो कह रहा है जैसा मैं इस संसार का नहीं, वैसे ही वे भी इस संसार के नहीं हैं. So he's saying, as I am not of this world, they are also not of this world. प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जो हमारी शारीरिक पहचान है वो हमारे ऊपर प्रभुता करती है. The problem is our physical identity still rules over us. हमारी कास्ट, Our caste, हमारा गोत्र, our हम creed, कहां से हैं, where we are from, ये चीज हमारे ऊपर आज भी रूल करती है. these things still rule over us, dominate us. आज क्यों लड़ाई हैं? Why are there so many fights and quarrels? विश्वासियों के अंदर Even among a believers, tribal spirit, a tribal spirit. एक ट्राइबल आत्मा. My tribe is better than your tribe. अरे मेरी ट्राइब जो है तुम्हारी ट्राइब से बेहतर है.
हम ऊंची जात तुम नीची जात। We are higher caste, you are lower caste. अरे सारी जात हट गई। All the castes were taken care of. यीशु ने कहा जैसा, वो ये नहीं कह रहा थोड़ा सा, वो कह रहा है एग्जैक्टली जैसा मैं इस संसार का नहीं हूं वैसे ही ये भी इस संसार के नहीं है। Jesus is saying, as I am not of this world, they are also not of this world. आमेन। तो अगर हम इस संसार के नहीं तो हम कहां के हैं? If we are not of this world, where are we from? जहां का यीशु है वहां के हम भी हैं। From the same place Jesus is, so are we. अगर वो स्वर्गीय है If he is heavenly, तो हम भी स्वर्गीय हैं। then we are heavenly also. और हमें मरने की जरूरत नहीं कि अमर उजाला के आगे स्वर्गीय लगे। जिस दिन हमने मसीह को ग्रहण किया, हम अब पृथ्वी के नहीं, हम स्वर्गीय हो चुके हैं। And we don't have to die to have the title heavenly. The day we received Jesus, we became heavenly. मेरे पीछे बोलो, मैं इस संसार का नहीं। Say, I am not of this world. सच में? Truly. अगर ये सच है If this is true, तो फिर हम क्यों चिंता करते हैं जैसे संसार चिंता then करता why do we worry like the world worries? है? हम क्यों डरते हैं जैसे संसार डरता Why है? are we afraid like the world is afraid? क्योंकि हम इस संसार के नहीं। Because we are not of this world. बस एक बात को समझो, Understand one thing. यीशु मसीह प्लूटो या गैलीलियो जैसा नहीं था। He was not a philosopher. Jesus was not like Plato or Galileo. He was not a philosopher. He is not giving you a philosophy. वो आपको ज्ञान नहीं बांट रहा. वो फिलॉसफी नहीं है। वो फिलॉसफी को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, फलसफा। ओके, आधों को तो पता ही नहीं हो क्या है, मुझे भी नहीं पता। बोलते ना फिलोसॉफिकल बातें कर रहा है, सूफी बातें कर रहा है। वो सूफी नहीं है कि ऐसे ही वो कोई बात कर रहा है। He is not philosophical that he is saying random things philosophically. आगे, इसके आगे, ठीक है, इसके आगे। Sanctify them by your truth. सत्य के द्वारा, अपने सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। Sanctify them with your truth. तेरा वचन सत्य है। Your word is truth. Sanctify them by your truth. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर. Sanctify them by your truth. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र ये कर. जो शब्द है सैंटिफाई, ये ग्रीक शब्द हैगियाजो से आता है, जिसका मतलब है उनको पवित्र कर और उनको दुनिया से अलग कर। The word sanctify comes from a Greek word hagiazo, which means to make them holy and to separate them from the world. That's what the word holy means. It means to set apart. That's what पवित्र वर्ड का ये अर्थ है कि अलग किया गया. ठीक है? Jesus is saying, यीशु कह रहे हैं, Father, पिता, set them apart from this world उन्हें इस दुनिया से अलग कर by your truth. अपने सत्य के द्वारा. And your word is the truth. और आपका वचन सत्य है. This word truth comes from the Greek word aletheia. ये जो शब्द सत्य है ये एलिथिया शब्द से आता है. Okay? Aletheia. And it simply means reality. और इसका सरल अर्थ है हकीकत. हे परमेश्वर, ओ गॉड, उन्हें जो तेरे लोग हैं, them your people, जैसा मैं संसार का नहीं, as I am not of the world, वैसे ही वे भी संसार के नहीं, so they are also not of this world. उनको इस दुनिया से अपनी हकीकत के द्वारा अलग कर। तेरा वचन हकीकत है। Separate them from this world by your truth. Your word is truth or reality. Okay, now I want you to understand one thing. मैं चाहता हूं आप समझे एक बात. Okay? एक हकीकत वो है जो आप जी रहे हो इस पृथ्वी There पे। is one reality which you are living on the earth. Jesus is talking about another kind of reality. यीशु बात कर रहे हैं एक दूसरी तरह की हकीकत के बारे में. एक ऐसी हकीकत जो आपकी आंखें नहीं देख सकती, आपके कान नहीं सुन सकते, ना ही आपकी ज्ञानेंद्रियां उसे महसूस कर सकती हैं। A reality your eyes cannot see, your ears cannot hear, and your senses cannot experience. There is another reality. एक दूसरी हकीकत है. This reality is a temporary reality. ये जो हकीकत है थोड़े समय की है, अस्थाई है.
आज Today, आप देखते हैं you see, किसी देश में कोई प्रधानमंत्री चुना जाता है, somebody is elected as a वो prime हकीकत है। minister. अगर कोई आपसे पूछे If वो someone हकीकत asks है, you, that's a मगर reality. 5 साल बाद But वो after 5 years, बदल जाता है, that can change. वो भी हकीकत है। That's also reality. मगर एक ऐसी हकीकत है जो अनंत से अनंत तक एक रहती है और कभी बदलती नहीं है। But there is another reality, such a reality that stays the same from the beginning till the end of eternity. It does not change. यीशु कह रहा है, Jesus is saying, पिता, Father, ये जिस वास्तविकता में, जिस हकीकत में जी रहे हैं, उन्हें अपनी हकीकत से, इनकी हकीकत से अलग कर। Jesus is saying the reality that they are living in, Father, separate them out of this reality by your reality. एक रियलिटी है कि अभी कुछ लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। And one reality is some people don't have a clue what's happening. कह रहे क्या What? अपनी वास्तविकता से उनकी वास्तविकता को अलग कर दे? By your reality. ठीक है, separate आराम से Slowly. समझ आएगा। You'll understand. यहां पे कई लोग हैं जो बीमारियों में हैं, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं, बंधनों में हैं। मगर एक वास्तविकता है जहां कई संत रह रहे हैं, जहां पर कोई आंसू नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कलेश नहीं। वो भी एक वास्तविकता है। Here there are people that are suffering sicknesses, are bound with demons or addictions or different things, but there is another reality where saints are living and there's no tears, there's no sorrow there. ओके अगर हम दूसरा राजा उसकी 6वीं आयत पढ़ें, अभी बस लिख लो, आप जानने की जरूरत नहीं है अभी, वहाँ पे मैं जल्दी से आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे हम एक कहानी पढ़ते हैं, एक परमेश्वर का दास है जिसका नाम एलाइशा है, एलीशा हिंदी बाइबल में, और अराम का एक राजा है जो सीरिया का राजा है, और वो अपनी सेना को भेजता है उसे मारने के लिए। So in 2 Kings chapter 6, there's a man of God, Elisha, and a king of Aram sends his army to kill this prophet. ओके और वो जो भविष्यवक्ता है उसके साथ उसका नौकर है। And that prophet is along with his servant. और जब उसके नौकर ने देखा कि पहाड़ को घेर लिया है पूरी सेना ने, And when his servant saw that the army has surrounded them on all sides, all the mountains, the servant saw that they are outnumbered. उस नौकर ने देखा कि वो गिनती में बहुत कम है उस सेना से। वो कितने हैं? How many are there in the army? पूरी आर्मी है, वो The सकते हैं entire हजारों। army, maybe thousands. और नौकर देख रहा है हम कितने हैं? And the servant is looking at मैं और himself and the prophet. भाग के जाता है, उसको बोलता है He runs to him and tells अब him, हम क्या करें? what should we do now? मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, I'll tell you one thing. दोनों पृथ्वी पे हैं, Both are on the earth, वही चीज देख रहे हैं, are seeing the same मगर thing, दोनों की हकीकत बिल्कुल अलग है। but both hold a very different reality. The reality of the servant was not the reality of the man of God. जो दास हकीकत देख रहा था वो हकीकत नहीं थी जो परमेश्वर का दास देख रहा था, जो भविष्यवक्ता देख रहा था। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? Okay, that means the reality you are experiencing is not objective, it is subjective. जो हकीकत आप देख रहे हो, जिसका अनुभव आप कर रहे हो, वो सबके लिए एक सी नहीं है, वो हर व्यक्ति के लिए अलग है। That means आप उसी घर में रह सकते हो, मगर जरूरी नहीं जो आप अनुभव कर रहे हैं आपके बगल वाला भी वही अनुभव कर रहा है। That means you could be living in the same house, but not important that you are experiencing exactly what the other person is Hear this, experiencing. you have your own reality, God has his own reality. आपकी खुद की एक हकीकत है और परमेश्वर की एक खुद की अलग हकीकत है। और यीशु मसीह कह रहा है, पिता तू अपनी रियलिटी से, अपनी वास्तविकता से इनको इनकी वास्तविकता से अलग कर। And Jesus is saying, Father, by your reality, separate them from their reality. What does that teach us? ये क्या दिखाता है? क्या That सिखाता है? teaches us that two different kind of realities coexist together. कि दो अलग अलग तरह की हकीकत एक साथ हैं। And whatever you are most
aware of और जिस बात पर आपका सबसे ज्यादा ध्यान है is what you will experience. वही हकीकत आप अनुभव करोगे. There are so many people inside an AC room, 3 meals a day. A good husband has good job, or a wife or whatever, has beautiful kids, and they are depressed. बहुत से लोग एसी के कमरे के अंदर बैठ के अच्छी शादी, अच्छा पति या पत्नी, अच्छे बच्चे, खुशहाल जिंदगी है, लेकिन अंदर से डिप्रेस्ड है. And there is Apostle Paul और अपोस्टल पौलुस है in a Philippian dungeon. एक फिलिपियों की जेल. It's not a jail, it's a dungeon. केवल जेल नहीं, वो डंजन है. बल्कि With chains and shackles bound, his hands and feet bound with chains and shackles. हाथ और पांव बेड़ियों में There जकड़े is हुए हैं. no window. कोई खिड़की नहीं. The room is filled with stench. वो कमरा बदबू से भरा And हुआ है. he says, rejoice. And again I say और rejoice. वो लिख रहा है कि आनंदित रहो और सदा आनंदित रहो. मैं कहता हूं Because he is experiencing God's reality क्योंकि in that moment. वो उस क्षण में परमेश्वर की हकीकत को अनुभव कर रहा है. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many understand what I'm saying? That means you don't live outside in, you live inside out. इसका मतलब आप बाहर से अंदर की तरफ नहीं, लेकिन भीतर से बाहर का जीवन जीते हो. That's why Bible says guard your heart, because out of it flows the issues of life. It's not in it, it's out of it. What is in your heart you will experience. इसीलिए बाइबल कहती है अपने सबसे बढ़कर अपने दिल की रक्षा करो, क्योंकि उसी में से जीवन के सारे मुद्दे निकलते हैं. बाहर से दिल में नहीं, लेकिन दिल से बाहर सारे मुद्दे आते हैं. Amen. That means what you are experiencing right now is the content of your heart. इसका मतलब अभी जो आप अनुभव कर रहे हो वो आपके दिल के अंदर जो कंटेंट है वही है. आपके दिल के अंदर जो है वही आप अनुभव कर रहे हो. You are experiencing what is inside your heart. The servant's reality came from his 5 senses. जो नौकर था उसकी हकीकत इन 5 ज्ञानेंद्रियों से उसको मिल रही थी. The prophet's reality came from a realm that is beyond 5 senses. उस भविष्यद्वक्ता की रियलिटी, हकीकत इस ज्ञानेंद्रियों की दुनिया से बाहर से थी. तो कोई तो व्यक्ति ऐसा है जो एक टूटी चारपाई में है, कूलर भी नहीं है, पंखा है, और वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है. और कोई है क्योंकि उसकी गाड़ी में एक स्क्रैच हो गया तो डिप्रेशन में है 3 दिन तक. So there is one on a broken cot, a broken bed, no cooler, no AC, only a fan, and there is one sitting in a luxurious car and is upset because it got a little scratched. Why? क्यों? Because you experience what you are aware of. क्योंकि आप वो अनुभव करते हो जिस बात के लिए आपकी चेतना है. Amen? मैं केवल एक फाउंडेशन बना रहा हूँ, मेन मैसेज ये नहीं है. मैं मेन मैसेज में आपको लेके जाना चाहता हूँ, मगर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को अच्छे से समझ जाएं. I'm just laying the foundation. This is not the main message, but I first want you to understand what I'm saying. लोग कहते हैं अरे आप देश में डिप्रेशन है, सारे यूथ डिप्रेस्ड हैं. हम कहते हैं नहीं, हम उनमें नहीं आते. People say, oh, there is depression in the entire country. The youth is depressed. We say, no, we are not among them. जैसा मैं इस संसार का नहीं, वैसे ये भी उस संसार के नहीं है. As I am not of this world, they are also not of this world. In his world, उसकी दुनिया में there is no depression. कोई डिप्रेशन नाम की चीज नहीं है. Here it's depression. Oh, यहाँ yes, डिप्रेशन चल रहा है. absolutely. हाँ. So people get upset that you don't understand what I'm going through. तो लोग नाराज हो जाते हैं कि आप नहीं समझते मैं क्या जूझ रहा हूँ किस बात से. What if the real issue was never to understand what you're going through, but to bring you out of what you are going through? क्या होगा अगर असली मुद्दा समझना नहीं था कि आपके साथ क्या हो रहा है, पर उसमें से आपको निकालना था असली मुद्दा.
What if you don't need sympathy, but you need the truth of God's word? क्या होगा अगर आपको सहानुभूति नहीं चाहिए थी, आपको परमेश्वर के वचन की हकीकत चाहिए थी? Because sympathy has never ever delivered anyone. क्योंकि सहानुभूति से आज तक किसी को छुटकारा नहीं मिल पाया है। Jesus goes to this pool of Bethesda and there is a man lying there 38 years and Jesus said, do you want to be healed? यीशु एक बेथेस्दा के पूल के पास जाते हैं, 38 साल से एक व्यक्ति है जो वहां पड़ा हुआ है और यीशु कहते हैं चंगा होना चाहते हो? And he's saying, you don't get it. और वो कहता है तुम नहीं समझते, I am paralyzed. अरे लकवे ग्रसित है। When the angel comes to stir the water, जब स्वर्गदूत आता है पूल को हिलाता है, everybody goes fast. हर कोई भाग के जाता है जल्दी। I don't have the capacity to go. मेरे पास क्षमता नहीं कि मैं जा पाऊं। What that man is doing is he's telling Jesus the reasons why he could not be healed. वो आदमी ये कर रहा है कि वो यीशु को कारण बता रहा है कि वो चंगा क्यों नहीं हो पाया इतने सालों से। And somehow Jesus is not interested to hear his story. और पता नहीं क्यों लेकिन यीशु को बिल्कुल रुचि नहीं है उसकी कहानियों में। Because Jesus has not come to hear his story, Jesus has come to make him walk again after 38 years. क्योंकि यीशु मसीह उसकी कहानी सुनने के लिए नहीं आए, उसको 38 साल बाद दोबारा से चलाने के लिए आए। Sometimes people want you to hear your story, they don't want to be delivered, but God says, hey, you will get delivered when you will focus on my story, not on your story. कई बारी लोग चाहते हैं कि जी हमें छुटकारा नहीं चाहिए, बस हमारी कहानी कोई सुन ले आकर के, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसकी कहानी पर, उसकी हकीकत पर ध्यान लगाओ ताकि अपनी कहानी से छुटकारा पाओ। अगर अपनी कहानी बदलना चाहते हो तो उसकी कहानी पर ध्यान लगाओ। If you want to change your story, then focus, pay attention to his story. Amen. Hallelujah. Jesus was very offensive. यीशु बहुत नाराज करने वाली बातें करते थे। Truth is offensive. सत्य नाराज करता है। Truth is offensive. सत्य नाराज करता है। Is it okay? I love it. I love it. God bless you. Do we want sympathy क्या हमें सहानुभूति चाहिए or do we want to change in our story? या अपनी कहानी में बदलाव? There are people who have not realized they have changed churches, gone from one church to another church, to another church, to another church, sang the same song. Hear me. This is what I went through. They want everyone to hear them, but they don't want to hear anyone. कई लोग हैं जिन्होंने एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया तो बदल ली, बदलते चले गए, वही गाना जिंदगी भर गाते गए, अलग अलग जगह जाके कि कोई मेरी कहानी सुन लो। वो चाहते थे कि वो उनकी कोई कहानी सुन ले, पर वो सुनना नहीं चाहते थे। God says, परमेश्वर कहता है, do not remember the former things. कि पुरानी बातों को याद मत करो। Behold, I am about to do a new thing in your life. देखो मैं तुम्हारी जिंदगी में एक नया काम करना चाहता हूँ, करने वाला हूँ। Behold, I am about to do a work that will surprise you. मैं एक ऐसा नया काम करने वाला हूँ कि तुम अचंभित हो जाओगे। But before you step into that new thing, लेकिन इससे पहले कि तुम उस नए काम में प्रवेश करो, you have to let go of the old thing. तुम्हें पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा। Before you embrace your new reality, you have to let go of old reality. अरे इससे पहले कि इस नई हकीकत को पकड़ लो, तुम्हें पुरानी हकीकत को छोड़ना पड़ेगा। Amen. So आराम से चलते हैं, आज कोई जल्दी नहीं है. There is no hurry, let's go slowly. Okay. As a teacher of the word, कितने teachers हैं यहाँ पे मुझे? How many teachers are here? आप हाथ ऐसा करेगा तो teachers हैं. आप लोग जानते हैं एक जो teacher है उसकी कितनी बड़ी responsibility है. You know, a teacher has a great responsibility. और teacher को ये sure करना पड़ता है, the teacher has to make sure कि जो सिखाया जा रहा है बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. And the teacher has to make sure that what is being taught is also being understood by the children. Okay? और इसीलिए बार-बार repeat किया जाता है. And that's why the teacher repeats again and again. Okay? तो I am delivered from the fear of repetition. तो मैं छुटकारा पा चुका हूँ दोहराने, बार-बार दोहराने के डर से। एक मेरे मित्र हैं, वो पास्टर हैं, वो मुझे मिले, वो कह रहे हैं मुझे लगता है कि मैं ये ऑलरेडी सिखा चुका हूँ. A friend of mine, a pastor, he said, कितनी बार सिखाऊं? I feel I've already taught this. How many times should I teach it? सिखाते रहो.
I said, keep on teaching. जब तक लोगों के जीवन में उस वचन के फल ना आए, सिखाते रहो. Until the time the people start to see the fruit of that teaching in their life, keep on Because teaching. the goal is not to entertain you. उद्देश्य आपका मनोरंजन करना नहीं है. Hear this. सुनिए, The goal is not to entertain you. The goal is to train you. उद्देश्य आपका मनोरंजन करना नहीं है, उद्देश्य आपका प्रशिक्षण करना है. And the people who go through training, they do the same thing again and again and again and again and again until it becomes their lifestyle. और जो लोग प्रशिक्षण के द्वारा गुजरते हैं वो एक ही चीज को बार बार दोहराते रहते हैं, करते रहते हैं, जब तक वो उनकी जिंदगी जीने का तरीका ना बन जाए. फिर आगे वह आपके पड़ोस में कलेश और बोला आजा यहां पे लड़ाई चल रही है. There was a quarrel in your colony and they said, come, there's fight happening. हाँ, सारे मलयालियों के बीच में और बंगालियों के बीच में. आजा तू बंगाली है. So all the Malayalis and Bengalis are fighting together. You also come, you're also Bengali. For you died. क्योंकि तुम मर गए. क्योंकि तुम मर चुके हो. For you have और died. अब एक नया मनुष्यत्व प्रभु यीशु मसीह में जीवित है. And now a new creation lives in Christ. Okay? I have not yet started the word. मैंने भी वचन शुरू नहीं किया. अभी वचन शुरू नहीं हुआ है. The word Okay. has not started yet. ये केवल सूप दिया है आपको कि थोड़ा आपकी भूख. This is just Appetizer. soup as an appetizer to Okay? make your hunger grow. कि थोड़ा आप भूखे हो जाओ वचन So के. that you become hungry for the word. Amen. Hallelujah. Amen. So let's go to 1 Thessalonians 5:23. पहला थिस्सलुनीको 5 उसका 23. ध्यान से सुनिए इसको. Now may the God of peace himself sanctify you completely. Himself separate you from the world completely. शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे. परमेश्वर आप ही तुम्हें इस दुनिया की हकीकत से अलग कर दे. And may your whole spirit, soul and body, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह, spirit, soul and body. तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह. आपको ये समझना बहुत जरूरी है that you are a 3-part being. You have to understand कि आप एक एक प्राणी हो. Okay? You are a spirit. आप एक आत्मा हो. बोलो मैं एक आत्मा हूं. Say I'm a spirit. बोलो मैं एक आत्मा हूं. I'm a spirit. You have a soul. आपके पास प्राण है. That means you have a mind, you have will, you have emotions. आपके पास दिमाग है, भावनाएं हैं. And you live in a body. और आप एक शरीर में रहते हो. ठीक है अभी तक? फिर से रिपीट करते हैं. बोलो मैं एक आत्मा हूं. Say I'm a spirit. मेरे पास प्राण है. I have a soul. प्राण में आता है आपका माइंड. In the soul is your mind. माइंड में आता है आपका इमोशंस, which includes your emotions, आपकी भावना, योर पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, आपके विल पावर, आपके डिसीजन लेने की क्षमता. your will power, your decision making. Okay? Now, what you have to understand is कि salvation में क्या हुआ? What happened in salvation? So you have to understand what happened in salvation. Okay? उद्धार जो बताया गया है वो इतना डाइल्यूटेड है कि भैया तुम पापी थे, तुमने यीशु को मान लिया, अब तुम्हें टिकट मिल गया है स्वर्ग का. हालेलुया. The gospel that we have heard is so diluted that you were sinners, now you believe in Jesus, now you have a ticket to heaven. Hallelujah. तो अब ज्यादा पाप मत करना. So now don't sin more, okay? बस कैसे भी करके, but somehow manage, बस आखिरी सांस तक till your last breath. बचा लो अपने आप को कैसे. Save yourself somehow if you can manage that.
तो फिर नीले आसमां के पार जाएंगे. then you will go beyond the blue skies. Because we have not understood salvation, क्योंकि हम उद्धार क्या है यही नहीं समझे, we are not living it out. इसीलिए उसको जी भी नहीं रहे. जब ये बहुत पहले समय की बात है, मैं पढ़ रहा था जापान में जब नई नई वॉशिंग मशीन्स इन्वेंट हुई. A long time ago when जापान की एक कंपनी वॉशिंग मशीन बना रही थी, a Japanese तो company is एक making गांव से washing machine. मशीन खराब होने की रिपोर्ट आने लगी. So from a village they started getting reports of washing machines not working properly. एक के बाद एक मशीन खराब हो one रही after है. another. तो कंपनी ने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ी है, या तो कुछ गलत पार्ट चला गया मशीन में. The company thought there's some problem, either they've had a manufacturing defect. तो उन्होंने अपने एक टीम को वहां पे भेजा रिसर्च करने के लिए कि क्या दिक्कत आ रही है इसमें. They sent a team to research what happened. और जब वो वहां गए तो देखा कि वो लोग वॉशिंग मशीन में अखरोट धो रहे थे. They saw they were washing dry fruits and that, जो जिस काम के लिए नहीं थी. which was not meant for it. क्यों? Why? क्योंकि यूजुअल जो मैनुअल था वो उनकी लैंग्वेज में नहीं था. Because the manual was not in their language. जब आप लैंग्वेज नहीं समझोगे स्वर्ग की, तो स्वर्गीय जीवन भी नहीं जी पाओगे. When you don't understand the language of heaven, you will not be able to live a heavenly life. ओके? यीशु मसीह केवल आपको स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह स्वर्ग को आपके अंदर डालने के लिए आया. Jesus did not just come to take you to heaven, he came to put heaven in you. Okay? Jesus did not come to change your location, he came to change your position. यीशु आपका पता बदलने के लिए नहीं आए, वो आपका स्थान जिस जगह पर आप खड़े हैं उसको बदलने के लिए आए. ओके? सो हमें सबसे पहले समझना है, और मैं इसको जल्दी से जाऊंगा क्योंकि फिर मैं आपको मेन चीज में ले जाना चाहता हूं. मेन चीज. चलो उससे पहले आपको एक जगह ले जाते हैं. ओके, लेट्स गो टू 2 Corinthians 5:17. दूसरा कुरिन्थियों 5:17. दूसरा कुरिन्थियों 5:17. हमने ये वचन बहुत सारे लोगों को आता है, हमने कई बारी बोला है, गाना भी गाया है. हाँ? We know this verse, many people have said it many times, we've sung songs of it. हमने गाना, यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि. आमीन. मगर इसका मतलब क्या है? What does it even mean? Therefore, if anyone is in Christ, इसलिए यदि कोई मसीह में है, बाइबल ये नहीं कहती यदि कोई ईसाई है, यदि कोई मसीह में है. if anyone is in Christ, he is a new creation. तो वो एक नई सृष्टि है. He is a new creation. वो एक नई सृष्टि है. ये जो शब्द है, ये शब्द है काइनोस. The word new creation is the word kainos. आज आपको बताना चाह रहा हूं, जिस दिन हमें सुसमाचार पता चलेगा, the mystery that has been hidden from ages and generations has now been revealed. The day we know the gospel, वो रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था, वो प्रकट किया गया. Holy Spirit, Jesus didn't send Holy Spirit so that you will just pray in tongues. यीशु ने पवित्र आत्मा सिर्फ इसलिए नहीं भेजा कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो. He sent the Holy Spirit to make you exactly like him. उसने पवित्र आत्मा इसलिए भेजा कि आपको अपनी तरह बना दे. मैंने आपको क्या बोला था? आज मैं आपको बता रहा हूं, ये वचन सबके लिए नहीं है. I'm telling you, this word is not for everyone. Everybody doesn't want it. हर एक को नहीं चाहिए, हर कोई चाहता नहीं है इस वचन को. लोग कहते हैं, क्या भैया आप हमें सिखा रहे हो नई सृष्टि? What are you teaching us, new creation? हमारे पति की अच्छी नौकरी रहे, Oh, let our husband get a good job. हमारा वीजा लग जाए, Let us get our visa, that's all. God has made you for so much more. परमेश्वर ने आपको इतना बहुत कुछ है. There is a much higher life in Christ Jesus. एक बहुत ज्यादा ऊंचा जीवन है जिसके लिए आप बुलाए गए हो मसीह में. Amen. आपको भिखारियों के तरह जीने की जरूरत नहीं है. आप राजा के बेटे और बेटियां बना दिए गए हो. You don't have to live like beggars. You have been made the sons and daughters of the King.
ओके, सुसमाचार समझना बहुत जरूरी है. So you have to understand the gospel. Jesus was the first prototype of a new creation. यीशु पहला प्रोटोटाइप था या एक आदर्श उदाहरण था उस नई सृष्टि का. ये जो शब्द है न्यू, ओके, अब पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ग्रीक में दो शब्द हैं न्यू के. अगर आपको लिखना है तो राइट इट डाउन. द फर्स्ट इज नियोस, NEOS. In Greek there are two words for the word new. पहला नियोस है. That means न्यू ईयर, न्यूअर. जैसे यू नो, कुछ आईफोन नया 16 के बाद आईफोन 17 नया मॉडल. Like नियोस, like a newer model of something. a modified, upgraded version. एक बेहतर वर्जन या कुछ बदलाव के साथ कुछ version. You are not upgraded version of Adam. आप आदम के बेहतर वर्जन नहीं हो. कई लोग कहते हैं मैं अब नया हो गया मसीह में. Some people say I'm new in Christ now. He is not saying if anyone is in Christ Jesus, he is a new person. वो ये नहीं कह रहा कि कोई नया व्यक्ति है. He says he is a new creation. वो कहता है वो एक नई सृष्टि है. Okay? Apostle Paul did not use the word neos. पौलुस प्रेरित ने नियोस शब्द इस्तेमाल नहीं. He used the word kainos. उसने काइनोस शब्द इस्तेमाल किया. Kainos means a new kind of creation or species that never existed before. The word kainos means एक नई तरह की सृष्टि जो आज से पहले कभी थी ही नहीं. जैसे गाड़ियां चला रहे थे हम, We were driving और एक cars. नई मॉडल आ गया, A new model came. that is neos. वो नियोस है. और तेज कार आ गई, A faster car. Neos. Neos. और तेज कार आ गई, Even faster Neos. car. Neos. मगर रॉकेट आ गया, But a rocket came. काइनोस. That's kainos. कंप्लीटली डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग चीज है. कंप्लीटली डिफरेंट. बिल्कुल अलग सृष्टि हो. ओके, आपको इसको समझना पड़ेगा. नई क्या है? सृष्टि है भाई. It's a new creation in itself. मैं मसीह में आया, I came to Christ. पहले मैं तंबाकू खाता था, I used to have tobacco अब मैं earlier. तंबाकू नहीं खाता. Now I don't take tobacco. प्रेज गॉड. प्रभु का धन्यवाद है. बट डोंट स्टॉप देयर. पर यहाँ रुको मत. बहुत सारे लोग हैं जो तंबाकू नहीं खाते. Many people don't eat tobacco, don't chew tobacco. देयर इज सो मच मोर. पर और बहुत ज्यादा द गॉस्पेल इज सो ग्लोरियस. सुसमाचार इतना महिमा से भरा है. I told you this word is not for everyone. मैंने कहा था ये वचन सबके लिए नहीं है. But I pray that if this word is for you, let it locate you today. और मेरी ये प्रार्थना है अगर ये वचन आपके लिए है तो आपको ढूंढ निकाले आज. Okay? Hear this. सुनिए. Kainos means something that has never existed before. काइनोस का अर्थ है एक ऐसी चीज जो पहले कभी थी ही नहीं. A new species. एक नई तरह की A सृष्टि. new creation. एक नई Or if I बनावट. can say alien. या उसको एलियन कह सकते हैं. Apostle Paul deliberately uses the word kainos. अपोस्टल पॉल जानबूझकर काइनोस शब्द इस्तेमाल करते हैं. He is not saying if you are in Christ, you are a cleaner version of old you. वो ये नहीं कह रहा अगर आप मसीह में हो तो पुराना जो आप थे उसका एक साफ किया हुआ You वर्जन. are a younger, a fresher, and upgraded version of old you. आप एक जवान और एक नया किया गया एक ताजा वर्जन हो पुराने वाले का. No, no, no. He's saying God has made you a new being. वो कह रहा है परमेश्वर ने आपको एक नया ही प्राणी बना दिया है. जैसे angels अलग being हैं, human beings अलग beings हैं. Like angels are different kind of beings, humans are different kind of Hear beings. this. सुनिए. Humans, इंसान, angels, स्वर्गदूत, new creation. नई सृष्टि. Jesus came like a man humbling himself, lower than angels. यीशु एक मनुष्य का रूप लेके आया, अपने आप को नम्र किया, स्वर्गदूतों से भी नीचा कर दिया. Now Apostle Paul says, अब पौलुस प्रेरित कहते हैं, do you not know क्या तुम नहीं जानते that you will judge angels? कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? Oh, is it too much for you? ज्यादा तो नहीं हो गया आपके लिए?
Do you know you're going to judge angels? क्या आप जानते हैं आप स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? There are many mysteries बहुत से रहस्य that God hid, जो परमेश्वर ने छुपा दिए थे, but now He's revealing it. पर अब वो उनको प्रकट करता है। There are animals, जानवर हैं, there are human beings, इंसान हैं, there are angels, स्वर्गदूत हैं, then there is new creation. और उसके बाद अब नई सृष्टि है। Angels do not have the privilege we have. स्वर्गदूतों के पास वो सौभाग्य नहीं है जो हमारे पास है। See, even though we look like other normal human beings, हालांकि हम सामान्य इंसानों की तरह दिखते हैं, we are a different species. हम एक अलग प्रजाति, एक अलग सृष्टि हैं। Why? क्यों? Because this species, क्योंकि ये जो प्रजाति this है, creation ये जो सृष्टि है, has the privilege इसके पास ये सौभाग्य है to carry God in them. कि अपने अंदर परमेश्वर को लेकर चले। No other creation has this privilege. और किसी सृष्टि को और किसी प्राणी को ये सौभाग्य नहीं मिला। Jesus said, because he was the first kainos being, he was the first prototype, Jesus said, the Father who dwells in me, he does the works. यीशु क्योंकि पहला वो आदर्श उदाहरण था इस काइनोस का, तो उसने कहा वो पिता जो मुझ में रहता है वो कामों को करता है। And what do we think? हमें क्या लगता है? Because I have prayed 4 hours, therefore I do the works. क्योंकि मैंने 4 घंटे प्रार्थना किया इसीलिए मैं ये कर रहा हूं। Jesus said, the Father who dwells in me. यीशु ने कहा जो पिता मुझ में रहता है। The gospel is so glorious. सुसमाचार इतना महिमान्वित है। You know, दुनिया में क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। What happens in the world? एक जब आप पैदा हुए थे, When you were born, है ना, कई माँ बाप अपने बच्चों को देखते हैं, some parents look at their children. I wish तुम ऐसे ही रहो, प्यारे से, क्यूट से, Oh, काश- बड़े ना हो। I wish you stay like this, don't grow up, you stay like this. शरीर में तो ऐसा नहीं होता, In the body it doesn't work like this. मगर आत्मा में कई हैं 20 साल से उतने ही क्यूट हैं, छोटे से। But in the spirit there are many 20 years they are still small, still cute like that. क्योंकि आत्मा में आप टाइम के साथ नहीं बढ़ते, आप डिजायर और इंटीमेसी के साथ बढ़ते हैं। Because in the spirit you don't grow with time, you grow with desire and intimacy. Okay? Who are we that God will give us the authority to judge angels? हम होते कौन है कि परमेश्वर हमें अधिकार देता स्वर्गदूतों का न्याय करने का? And abhi, this is going to become so beautiful. When we study the Bible, see, Paul is a scholar. When he uses some words, it's powerful. पौलुस एक स्कॉलर था और जब वो कुछ शब्दों का इस्तेमाल करता है वो बड़ा ही शक्तिशाली है। Okay? He who is in Christ, he is a new. वो जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि, एक नई बनावट है। And the word is katesis. Say katesis. वो शब्द है कटीसिस। You know what is the word that Apostle Paul uses? अब जानते हैं क्या शब्द है वो जो पौलुस प्रेरित When I was इस्तेमाल studying this, my mind was blown. करता है? जब मैं पढ़ रहा था मैं हैरान हो गया। It is the same word when first God created heavens and the earth. ये वही शब्द है जब पहले परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। Paul is saying what God has done now in the new creation is of the same magnitude as in the beginning he said, let there be light, and there was light. पौलुस प्रेरित ये कह रहे हैं कि जो परमेश्वर ने अब किया है ये उसी दर्जे का है जब परमेश्वर ने पहली दफा कहा था कि उजाला हो जाए और उजाला हो गया।
इसीलिए भैया ये धर्म के बारे में नहीं है, ये ईसाइयत के बारे में नहीं है, ये आपका नाम जॉन डेविड फर्नांडिस हो उसके बारे में नहीं है। This is not about the religion. This is not about your name being a biblical name. आपका नाम राम कृष्ण मनोहर कुछ भी हो सकता है और आप एक नई सृष्टि हो सकते हो। Your name can be anything and you can be a new creation. That's why it's not about changing your name. इसीलिए मुद्दा नाम बदलना नहीं है। No, God has changed the very species. परमेश्वर ने वो सृष्टि ही बदल डाली है। हाँ, मुझे मेरा नाम बदलना है। Oh, I have to change my name. क्यों भाई? Why? अच्छा नहीं लगा तुम्हें अपना नाम? Don't like your name. और फिर बाकी लोग बोलते हैं देखो ये तुम्हारा नाम बदल देते, धर्म बदल देते। अरे कोई धर्म नहीं बदलता। And there is a look they change your name, your religion. No, God no is religion not is changed. intimidated by your name. परमेश्वर का आपके नाम से डर नहीं लगता। Amen? Because we have not understood what God has done, we are trying to change the external. क्योंकि हम नहीं समझे परमेश्वर ने क्या किया तो हम बाहरी चीजों को बदल रहे हैं। And God changed the internal. लेकिन परमेश्वर ने अंदर का सब कुछ बदल दिया। Amen? Okay. ये मैं आपको बताया था, ये थोड़ा मैं बहुत ही इजी करके आपको बता रहा हूं I'm making it easy कि for आप you to. समझो। मगर एक बात में ध्यान से सुनना, कौन समझते हैं परमेश्वर के राज्य में? अपने पड़ोसी को बोलो कौन समझते हैं, सवाल पूछो कौन समझते हैं। Ask your neighbor who understands in the kingdom. पता कौन समझते हैं? Do you know who? जो समझना चाहते हैं। Those who want to understand. यीशु ने एक दृष्टांत बताया, एक बीज बोने वाला बीज बोने गया। Jesus told a parable, a source went to sow. हजारों लोग बैठे हैं, Thousands of people were there. एक दूसरे दो लोग बात कर रहे Two हैं। people are talking. ये बाइबल में नहीं है, मेरा वर्जन। This is not in the Bible, it's my version. ठीक है, पैराफ्रेज वर्जन। दो लोग बात कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? बीज बीज What is he saying? Seed. कह रहे हैं, पता नहीं। आखिरी में चले जाएंगे I सब। will go in the end for lay hand prayer. And let him speak. बीज बीज कुछ समझ में नहीं। Seed, weed, whatever he wants to say. असली बात है जब टाइम मिले छू लेना बस। The real thing is when you get time, touch him. यही अंतर था भीड़ में और चेलों में। That was the difference between the crowds and the disciples. यीशु के पीछे पीछे गए चेले, बोला प्रभु इस दृष्टांत का मतलब क्या है? These disciples, they went after Jesus and said, Lord, what do you even mean प्रभु when ने you कहा say तुम्हें this? समझाता हूँ। Jesus said, I will explain it to क्योंकि you. राज्य में वही समझता है जो समझना चाहता है। Because in the kingdom, only those who want to understand are able to understand. वरना आप घर जाके बोलोगे Otherwise, you'll go home. बहुत मजा आया। Oh, I really enjoyed today. हाँ, कोई पूछेगा आपसे क्या सिखाया आज? Somebody will say, what did I teach? कुछ नई नई बात कर रहे थे। They were saying something new, बाकी something. तो कुछ नहीं पता, बस बहुत मजा आया। I don't know anything else, but I really enjoyed it. यीशु ने कहा Jesus said, जब परमेश्वर के राज्य का प्रचार होता है और मनुष्य नहीं समझता तो शैतान आता है और जो बीज बोया गया उसे चुरा के ले जाता है। when the kingdom of God is preached and the person hearing it does not understand, the devil immediately comes and steals the word sown. मगर जो समझना चाहता है बीज उसके हृदय में जाता है और 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आता है। But anyone who wants to understand, the seed goes into their heart, the word goes into their heart, and they have 30-fold, 60-fold and 100-fold fruit of it. Amen. Hallelujah. तो अगर समझना चाहते हो So if you want to understand, तो समझ में आएगा। then you will be able to understand. अगर समझना नहीं चाहते If you don't want to understand, तो यीशु भी उनको नहीं समझा पाया जो नहीं समझना चाहते। even Jesus could not make them understand who did तो not फिर want to understand. मैं क्या कर सकता हूँ? What can I do with that? ओके, तो जो समझना चाहते हैं उनके लिए आगे चलते So हैं। those who want to understand, let's move forward for them. ओके, सो hear this so that you understand what does in Christ mean. मसीह में अगर होना कोई क्या अर्थ है? मसीह में है, If someone is in Christ,
लोग कहते हैं हाँ हाँ हम मसीह में हैं, हमारा तो सरनेम भी मसीह है। People say, yeah, we are in Christ. Our surname is also Masih. बुरा मत मान। Don't feel offended, okay? ओके मैं क्या कह रहा हूँ, इसका सरनेम से, आपके नेम से, This has nothing to do with your name, your आप surname, कहाँ से हैं। from where you are. हम 16 पुश्तों से आ रहे हैं। Oh, we मसीह are Christian from 16 generations. शरीर नहीं जन्म दे सकता एक मसीह को। Body cannot give birth to a believer. फ्लैश कैन नॉट गिव बर्थ टू न्यू क्रिएशन। शरीर से एक नई सृष्टि पैदा नहीं होती है। तो कितनी जनरेशन से आप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। So it doesn't matter how many generations you've been a Christian. Until you get born from above. जब तक तुम ऊपर से जन्म ना लो। अदरवाइज तो खेल ही खत्म है ना फिर। बढ़िया था, फिर तो क्या प्रचार करने की जरूरत है। Otherwise the matter is over. No need to preach. बस ऊपर वालों ने प्रभु को ग्रहण किया, The guys उसके बाद सब मसीह 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 पैदा हो गए। in the previous generations accepted the Lord. Now all that are born are believers. वो धर्म है। New creation. No, that is religion. एक धर्म में जो व्यक्ति है वो उसी व्यक्ति को जन्म देता है जो उसी धर्म में है। मगर एक नई सृष्टि आत्मा है, शरीर को जन्म नहीं दे सकता। Anyone who is in any religion can only give birth to people in that religion, but the spirit cannot be born out like that. हाँ, हमें फोन आते हैं कई बारी, We get a phone call आप sometimes. या हम ईसाई बनना चाहते हैं, Oh, we want to become आप religious. ईसाई बनाते हो। Do you हम make कहेंगे people नहीं, हम Christians? ईसाई भगाएंगे आपके अंदर। We say no, we'll make the Isai in you run away. कई लोग गुस्से से देख रहे हैं मुझे। It was never about religion. धर्म तो कभी इसमें मुद्दा था ही नहीं. क्योंकि धर्म शरीर के बारे में है, यीशु आत्मा को नया करने के लिए आया। Because religion is about the flesh. Jesus came to make your spirits brand new. ओके मैं ब्रेक ले लेके मैं चल रहा हूँ, I'm taking breaks. ठीक है, आराम से। वैसे भी फास्टिंग प्रेयर है। Anyways, fasting prayer. और मैंने टीम को बोल दिया जो बाहर खाने, मैंने कहा जो सबसे पहले जाएगा ना उसको सबसे आखिरी में खाना दोगे अब तुम। And I told the team outside, those who go early for food, give them food at the end. जो यहाँ बैठ के रहते हैं दे शुड बी रिवॉर्डेड। Those who sit here, उनको प्रतिफल मिलना चाहिए उसका. आमीन। देखो बाइबल कहती है कि बुद्धि चौराहे पे खड़े होके चिल्लाती है। क्या करती है बुद्धि? चौराहे पे खड़े होके। Bible says wisdom cries out in the streets. कि कोई तो मेरी सुन लो। Let someone hear me out. मुझे टीम बता रही थी, किचन टीम, The team was कई telling बंदे 2 घंटे वो बाहर खड़े रहते हैं। Some people they stand outside 2 hours. मैंने कहा भाई अंदर चेयर है, एसी है, अंदर बैठ जाओ। And we said to them, go inside this AC chair, go sit. वो 2 घंटे बाहर बैठे। They'll stand outside 2 जब hours. खाना खुलेगा तो सबसे No. पहले। When food opens, we'll go first. तो टीम ने मुझसे कहा क्या करें हम? The team asked me, what should we do? मैंने कहा सबसे आखिरी में तो इन्हें I खाना। told them, give them food at the end. आमीन। यहाँ वही व्यक्ति आए जो आत्मा का भोजन खाना चाहते Let only those people come here who want to have the food of the Spirit. हैं। आमीन। हम सबकी सेवा करना चाहते हैं, मुझे गलत मत समझिए, मगर आई वुड हेट टू नो, मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर मुझे पता चले कि कोई कलीसिया में खाने के लिए आ रहा है और वचन के लिए नहीं आ रहा है। We want to serve everyone, but I would feel really hurt and bad if I would know that somebody is coming for food and not for the word. क्या फायदा है ऐसे भोजन का जो हमें परमेश्वर के वचन से दूर कर रहा है? What is the point of such a food that makes us go far from the word of God? मजाक तो नहीं लग रहा ना आपको? सच में बोला है मैंने। I'm not joking. I've really told the team. ओके, हालेलुया। आइए वापस आते हैं वचन में। Let's go back to the word. पीछे के लोग ताली नहीं बजा रहे।
हाँ, ईसाऊ की कहानी याद है ना, एक कटोरी दाल के लिए। Remember the story of Esau for one bowl of meal? आपको याद है यहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर आया था, There was a taxi driver who had come. आखिरी मीटिंग चल रही थी, आखिरी प्रेयर, It was the last prayer. और वो आया और चंगा हो गया। He came and he got healed. एक पति अपनी पत्नी को लेकर आए, A husband brought his wife. उनको आते हुए लेट हो गई, They got late. in 3 coming. बजे अंदर एंटर करे तो यहाँ जगह नहीं मिली तो चैपल में बैठे। They entered at 3. No space here, so they entered the आखिरी chapel. प्रार्थना चल रही है During the last prayer, और वहां चंगे हो गए। and they got healed there. और कुछ लोग हैं आखिरी प्रार्थना से पहले, And some people, before the last prayer, they'll go and stand. टीम कह रही है अभी मीटिंग चल रही है, The team tells them the meeting is going on. No, हम तो यहीं खड़े। We are standing right here. हाँ, वो आयत में खड़े हो, खड़े हो जाओ और शैतान का सामना कर। The violent take it by force. बलपूर्वक ले लेंगे हम खाना आज। आपको नहीं पता You don't पूरी even know. मीटिंग में कौन सा वो क्षण है जब परमेश्वर आपके ऊपर उस अनुग्रह को कर दे। You don't even know what point of the entire meeting God will release that grace upon your life. हाँ, मैं आपको सच में परमेश्वर के सामने कह रहा हूं, I'm saying this before the Lord. ना हम सबकी सेवा करना चाहते हैं, We want to serve everyone. बट हियर दिस, सुनिए, फिर मैं वचन में चलता हूं वापस, बट हियर दिस, वी विल नॉट बेंड आवर कन्विक्शंस बिकॉज ऑफ अ क्राउड। हम भीड़ के कारण जो हम मानते हैं उसको बदलेंगे नहीं। So many messages come to us. बहुत से मैसेज आते We हैं। love this church, हमें प्यार है इस चर्च से, but we don't want a 4-hour service. लेकिन 4 घंटे की सभा नहीं चाहिए हमें। We say we love you too, हम कहते हैं हम भी आपसे प्यार करते हैं, but we cannot change the way we do things. लेकिन हम बदल नहीं सकते जैसे करेंगे। Amen? There is a cost to pay. एक दाम है चुकाने के लिए, There's a cost to pay. एक दाम है चुकाने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. Amen. किचन टीम बहुत खुश हो गया आज। ओके, सो वचन में आए वापस। ओके,